অসমীয়াত এগৰাকী অসমত আচলতে অসমীয়াত এটা বাক্য আছে যে অহংকাৰেই পতনৰ মূল আৰু এই বাক্যশাৰীয়ে যেন এতিয়া সঁচা অৰ্থত ব্যৱহৃত হ'বলৈ লৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত। অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে কিদৰে 400 আসন বিচৰা বা 400খন আসন পাব বুলি দাবী কৰা এক কথাত পামেই বুলি কোৱা বিজেপি কেৱল 240খন আসনত ৰৈ গ'ল। আৰু তাৰ পাছতেই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিদৰে RSS অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ আৰু বিজেপিৰ মাজত ব্যৱধান বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, দুয়োৰে মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। দিনে দিনে প্ৰতিদিনে ন খবৰ আহিছে কিদৰে বিজেপি আৰু RSSৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তাৰে প্ৰেক্ষাপটত ইন্দ্ৰেশ কুমাৰে এগৰাকী RSSৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰে মন্তব্য কৰিছে যে অহংকাৰৰ বাবেই ৰৈ যাবলগীয়া হৈছে বিজেপি 240ত বা থমকি যাবলগীয়া হৈছে বিজেপি 240ত অহংকাৰৰ বাবে। RSSৰ এআই দাবী। গতিকে আপোনালোকক জনাই আছোঁ বিতং তথ্য গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে। ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছে বিজেপি RSSৰ সংঘাত। এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিছে জ্যেষ্ঠ RSS নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰে। ইন্দ্ৰেশ কুমাৰৰ মতে অহংকাৰী হৈছে ৰাম ভক্ত বিজেপি। অহংকাৰৰ বাবে বিজেপি 240 আসনত থমকি ৰোৱা বুলি মন্তব্য RSS নেতাগৰাকীৰ। বিজেপি 240 আসনত ৰৈ যোৱাটো ভগৱান ৰামৰ ন্যায় বুলি মন্তব্য ইন্দ্ৰেশ কুমাৰৰ। ইপিনে যাৰ ৰামৰ ওপৰত আস্থা নাই তেওঁলোকে 234ত ৰৈ যোৱা বুলি মন্তব্য ইন্দ্ৰেশ কুমাৰৰ। ভগৱান ৰামে সকলোৰে লগত ন্যায় কৰে বুলি মন্তব্য RSS নেতাগৰাকীৰ। আৰু আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ তথ্য যে RSS নেতাৰ মুখত পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে RSS আৰু বিজেপিৰ সংঘাত স্পষ্ট হৈ গৈ আছে। দিনক দিনে বিজেপি আৰু RSSৰ সংঘাত। আজি এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰে RSS নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰে। ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছে বিজেপি আৰু RSSৰ এই মুকলি সংঘাত। এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিছে জ্যেষ্ঠ RSS নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰে। ইন্দ্ৰেশ কুমাৰৰ মতে অহংকাৰী হৈছে ৰাম ভক্ত বিজেপি। পুনৰবাৰ কৈছোঁ ইন্দ্ৰেশ কুমাৰৰ স্পষ্ট মন্তব্য যে অহংকাৰী হৈছে ৰাম ভক্ত বিজেপি। অহংকাৰৰ বাবে বিজেপি 240 আসনত থমকি ৰোৱা বুলি মন্তব্য RSS নেতাগৰাকীৰ। বিজেপি 240 আসনত ৰৈ যোৱাটোক ভগৱান ৰামৰ ন্যায় বুলি মন্তব্য ইন্দ্ৰেশ কুমাৰৰ। ইপিনে যাৰ ৰামৰ ওপৰত আস্থা নাই তেওঁলোক 234ত ৰৈ যোৱা বুলি মন্তব্য ইন্দ্ৰেশ কুমাৰৰ। ভগৱান ৰামে সকলোৰে লগত ন্যায় কৰে বুলি মন্তব্য RSS নেতাগৰাকীৰ। আৰু ইয়াৰ পাছতে আচলতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বিজেপি আৰু RSSৰ সংঘাত এতিয়া আৰু কোনো নতুন কথা নহয়। এয়া এতিয়া একেবাৰে চৌদিশে বিয়পি পৰিছে তাৰ চৰ্চা। আৰু RSSে পুনৰবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ মাত মাতিছে। অহংকাৰৰ বাবেই বিজেপিৰ পতন ঘটা বুলি মন্তব্য কৰিছে, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে RSSে। অহংকাৰৰ বাবে 240 আসনত থমকি ৰৈছে বিজেপি বুলি মন্তব্য RSS নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰৰ। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইন্দ্ৰেশ কুমাৰৰ বিশেষ বাৰ্তাটো। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका कल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करें। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा
नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे, राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम का और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। विश्व में कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ता। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे, राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम का और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। विश्व में कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत